young to start an empire and never too old to chase a new dream. A philosophy that most successful entrepreneurs follow, and we at Udaipur Colors in our segment for architects and interior designers are in conversation with one such successful architect, Mr. Himanshu Jain. He has set a name for himself in Mumbai and now in Udaipur and Rajsamand in a very short span of just 7 years. So we are glad we could have a conversation with him. Thank you so much, Himanshu, for joining us today. Thank you for inviting us, sir. So you come from a business family. So what prompted you to become an architect and a designer? I cannot say, but I'm from a business family, and it was quite difficult also to convince my family even कि I'm choosing a profession which is totally from a service sector. Then, my mama supported me a lot. कि यार नहीं ठीक है, you are interested in like sketching and all, you are good at it, and I was not interested in studies. So I was like कि यार नहीं मैं BCom नहीं करूँगा. तो he was like कि नहीं ठीक है, तो इसी फील्ड से कुछ ढूंढते हैं. Then he told कि यार एक इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट का you can try. तो I told कि हाँ ठीक है, I can go for it because I too likes to these things. अच्छा लगता है. I used to like, मेरे को अच्छा लगता था sketching and all, तो I was like हाँ ठीक है, I can go for it. So that's why I was here and now I am in front of you. Of course. And just 7 years में you've done really well. No, it's not 7 years, it's only 5 years. अच्छा, okay. I'm working from past 5 years only. Okay. I started my working from my second year itself. But professionally, if I say, it's only 5 years. 5 years. So Honey Interiors जो आपकी कंपनी है, वो किस तरह की प्रोजेक्ट्स करती है? We do all kind of projects. Like we are into big bungalows and all. But we do residence. We do commercial offices. We do these hospitality even. So we are into every kind of projects. Every kind of projects. Okay. तो आपकी mostly we are based in interiors, we can say. Okay, that's why the name Honey Interiors. Yeah, that's why the name is Honey. तो जब हम आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो मुश्किल है ये सवाल, बट फिर भी सबसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? Being a designer, I cannot say कि मेरा ये प्रोजेक्ट ज़्यादा क्रिएटिव था, because अगर क्लाइंट ने देखा तो उसको थोड़ा लग सकता है. But हाँ, I have done approximately 125 projects till now. Okay. So I can say कि एक कौन सा है? every project is a creative project for me because every project is having a new challenge to it. So I can say my first project, I can say that was the most creative project because I have put in my whole soul to it कि यार नहीं मेरे को ये project बिल्कुल ऐसा करना है कि एक बार देखे ऐसे लोग. So that was my creative project, I can say, in Mumbai. ओके. सो मेरा क्वेश्चन यही था कि आप बॉम्बे से आपने अपनी पढ़ाई भी करी और आपका करियर की शुरुआत भी बॉम्बे से हुई है, आप बॉम्बे में आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं. तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कम टू उदयपुर इन राजस्थान एंड ब्रांच योर ऑफिसेज हियर आल्सो? I was working from before 3 years. I was working in Mumbai only. Okay. And then I got a call from here in Rajsamand, from my hometown. Okay. I was having few projects over here. तो they told कि यार नहीं मेरा अभी रूम we have to design a room over here. I was like okay, and I was quite afraid कि यार वहाँ पे if I do how would I manage and all. But हाँ, my partner Bunty he supported me कि यार नहीं यार we can do it, कोई issue नहीं है. तो we got that कि ठीक है we'll do that. And secondly hometown था, तो it was very close to me कि यार ठीक है यार at least घर में रहूँगा. That's why that was an attachment from hometown. So I was like कि ठीक है, it's good. I'm sure आपके पेरेंट्स बहुत खुश हुए होंगे कि हमारा बच्चा वापस घर आ गया. राइट. ओके. सो क्या डिफरेंस है जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जब हम थोड़ी स्मॉलर सिटीज़ के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग डिज़ाइन टू द एंड प्रोडक्ट? There are few difference because वहाँ पे scale is not that much large. यहाँ स्केल बहुत बड़ा है. लाइक प्रोजेक्ट का एरिया बहुत बड़ा होता है. एज आई कैन से कि प्रोजेक्ट का जो एरिया है यहाँ बहुत बड़ा होता है. वहाँ एक मिनिमल एक लेवल तक ही वी हैव टू स्टॉप इट एट लाइक 3,000-4,000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम इन मुंबई. बट यहाँ पे स्टार्टिंग इज फ्रॉम 3,000-4,000. तो वो एक चैलेंजिंग टास्क ऐसा रहता है कि हाँ बड़ी स्पेस को कोजी बनाना है. वहाँ ऑलरेडी स्पेस कम है बट उसे
lavish बनाना है, spacious बनाना है, तो that's a I think एकदम opposite हो गया, both are very opposite, तो जगल करना मुश्किल हो जाता होगा। थोड़ा but ठीक है, we are that much capable that we can cope with that situation. Right, and मैंने आपकी टीम भी बहुत it's a bunch of young minds and young people, तो इनको मैनेज करना किस तरीके से मैनेज करते हैं आप इनको? Mostly our work is done on calls because mostly my team is every time they are with me, like if I need them anytime. So हिमांशु, आपकी जो टीम है वो कहाँ पे बेस्ड है? My main team is based in Mumbai. अच्छा, ओके। And वहीं से ही सारा हम लोग मैनेज करके काम करते हैं। तो कितना कन्वीनियंट है, मतलब बिकॉज योर टीम इज बेस्ड इन मुंबई, तो मुश्किल है या इट्स क्वाइट इजी? इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट वी कैन से, बट हाँ थोड़ी इश्यूज आते हैं, बट वी कैन कोप विद इट। दे आर नॉट दैट मच बिग बिकॉज टेक्नोलॉजी इज वेरी कीन नाउअडेज, सो इट्स इजी टू मैनेज दीज थिंग्स। एंड आपकी टीम इज अ बंच ऑफ यंग माइंड्स एंड यंग पीपल, या दैट वाज माय लाइक यू, दैट वाज माय ऑन पर्पस था। थैंक यू, दैट वाज माय पर्पस कि यार नहीं यार, एटलीस्ट टीम शुड नॉट फील लाइक कि यार कोई हमें लीड कर रहा है, दे शुड बी लाइक हाँ फैमिली काइंड ऑफ। आई वांटेड अ टीम की जो फैमिली की तरह काम करे। इवन आई डोंट टेल देम टू कॉल मी सर, दे कॉल मी भैया और हिमांशु, दैट्स इट, बिकॉज मेरे को उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक अपनापन बनेगा तो काम वो लोग को और इजी वे में और बहुत अच्छे से करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग, राइट, वो एक सही अप्रोच है। ओके, तो आई मीन आपने अभी क्लैरिफाई किया कि आपको कॉलेज से निकले हुए सिर्फ 5 साल हुए। जो कॉलेज में पढ़ा था इट वाज ऑल वेरी थियोरेटिकल, और जब साइट पे आते हो तो एवरीथिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो वो कितना डिफरेंस था कि कॉलेज में पढ़ना और उसको रियलिटी में अप्लाई करना? कॉलेज वॉज लाइक इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो कि हाँ कॉलेज का ज्ञान हमेशा काम आता है, वो एक डिफरेंट पार्ट है, वो बेस हो जाता है। बट हाँ इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉलेज में नहीं सिखाई जाती कि क्लाइंट को डील कैसे करना है। द बिगेस्ट थिंग इज कॉलेज आपको ये सिखा देगा डिज़ाइन कैसे करना है, बट यू कैन नॉट टेल कि क्लाइंट को डील कैसे करना है। दैट्स द मेन टास्क इन दिस फील्ड कि यार उससे सेटिस्फाई कैसे किया जाए। लाइक उसकी डिमांड्स आर नेवर एंडिंग एंड his thoughts are like he is having a budget of Maruti Suzuki and he is expecting to make it Rolls Royce or something. So that is a big task for us. Right. But take we can cope with it, and every customers have their mindset. Right. We have to play with them. Exactly. तो आपका फील वैसे तो डिमांडिंग है, पर कितनी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हर बार अपनी डिमांड्स बदलता रहता है। वन इज़ अ बिग ड्रीम एंड वन इज़ अ चेंजिंग ड्रीम। तो इस तरीके के क्लाइंट्स को हैंडल किस तरह करते, किस तरीके से आप करते हैं? उनके साथ क्या होता है ना कि जो होता है ना, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू रीड देयर माइंड कि यार हाँ इस तरीके से काम करेगा या उस तरीके से काम करेगा। तो अगर उसे माइंड पढ़ लिया आपने तो इट्स ईजी, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू देन वी हैव टू क्विट ऑल्सो समटाइम्स। हाँ, यू हैव टू गिव अप एंड से वी हैव टू गिव अप दैट कि भाई हाँ भाई अब नहीं होगा तो छोड़ दे, वी कैन नॉट डू इट लाइक। राइट। सो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, एंड अगर सपोजिटली कोई क्लाइंट या किसी कस्टमर को आपको अप्रोच करना है तो आप अपनी मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, एंड हाउ कैन दे अप्रोच यू? मोस्टली मार्केटिंग की बात करूँ तो मेरा आई कैन से कि मेरा टोटल वर्क इज़ लाइक फ्रॉम फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्क। आई कैन से आई एम वेरी एक्टिव ऑन दैट थिंग। हाँ, मेरे सारे प्रमोशन सारा कुछ सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है। सेकेंडली नो डाउट कि ऐसा बोला जाता है ना कि भाई काम जो है काम से मिलता है, तो वो चीज़ है, बट मोस्टली मेरे कस्टमर्स सारे के सारे यार ऑनलाइन होंगे। ओके, फाइन। तो आई ट्राई टू कीप ऑन लाइक नए कहाँ नए कौन से एरियाज में आई कैन ट्राई कि जहाँ मैंने सपोज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अहमदाबाद, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बैंगलोर इवन कि यार वहाँ काम करना है। तो इट्स लाइक हाँ अपॉर्चुनिटी भी होता है काफ़ी जगह, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी ऑल्सो कि हाँ हर जगह अपन हाँ कर पाए, बट इट वर्क्स। एंड आई थिंक क्योंकि आपके ऑफिसेज मल्टीपल लोकेशंस में, तो वो एक एडवांटेज भी है। दैट इज एडवांटेज, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ जब हम हर आर्किटेक्ट की एक डिज़ाइन फिलोसफी होती है और एक सिग्नेचर स्टाइल होती है, और शायद आपका टैगलाइन भी है एनीथिंग बट यूनिक। सो व्हाट इज़ योर यूनिक सिग्नेचर स्टाइल? माय यूनिक सिग्नेचर स्टाइल आई वोंट से, आई कैन से कि हाँ I can design something that can satisfy my clients. Okay. I can only say that because at the end of the day वही आपका गोल है। मेरा गोल वही है कि हाँ मेरा client satisfied है तो मैं satisfied हूँ। That's it. Right. And I'm sure अभी तक you've been able to get 100% success on that. We cannot say that because काफ़ी clients नाराज़ भी होते हैं,
तो बट ठीक है, इट्स गुड कि कुछ ना कुछ हर क्लाइंट कुछ ना कुछ नई सीख दे के जाता है, दैट्स लाइक दैट कि हाँ कुछ ना अगर ये आया है तो कुछ ना कुछ नया देगा, दैट्स गुड, ठीक है। Okay. So, I mean, 5 years, actual business में तो 5 years है. So now at this stage, do you call yourself more of a businessman or more of a designer or an architect? इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग कि ये मैं जस्टिफाई कर लूँ कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ या एक बिजनेसमैन हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग अ ब्लड ऑफ अ बिजनेसमैन एंड आई एम अ डिज़ाइनर बाय माइंड एंड बाय माई हार्ट ऑल्सो. सो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, मेरे को दोनों ही यू कैन से कि आई एम अ कॉम्बो ऑफ अ बिजनेसमैन एंड अ माइंड सेट ऑफ आई एम अ कॉम्बो ऑफ डिज़ाइनर एंड अ बिजनेसमैन. I think वो combination has worked very good for you and I'm sure शायद ये एक टिप आप young entrepreneurs को भी देना चाहेंगे, that be a blend of both. Because in today's time, if you are not a blend, so it's bit difficult task also, because we have to keep a knowledge of different things while working on site, because client can ask anything. He is free to ask you anything, like, because it's a kind of job कि you are a doctor to it, बिकॉज उसका घर आपके लिए पेशेंट है ना, आप उसके डॉक्टर हो, तो इट्स लाइक कि हाँ वो आपको उसके इलाज के लिए कुछ भी पूछ सकता है एट एनी मोमेंट कि कहाँ से, और वी हैव टू गिव देम आंसर्स. तो वो चीज़ है कि हाँ वी हैव टू डू दैट. सो जब हम हनी इंटीरियर्स की बात करते हैं, सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ हनी इंटीरियर्स? यूएसपी आई कैन से कि वी कैन क्रिएट एनीथिंग बट यूनिक, दैट्स माई टैगलाइन इवन. बट हाँ वी ऑलवेज ट्राई कि यार कुछ ऐसा दें जो कि क्लाइंट के बजट के अंदर भी जाए एंड उसे अच्छा भी लगे. इट्स नॉट लाइक कि यार खाली पैसा ही लगवाना है, एटलीस्ट ही शुड बी सेटिस्फाइड विद द वर्क बाय आवर टीम और बाय ऑन साइट in any cases. Right. Thank you so much, Himanshu. It was wonderful talking to you. So much to learn from a young entrepreneur like you, that how do you strike a balance between being a businessman and a designer. Thank you once again. Welcome. We had a wonderful conversation with Mr. Himanshu Jain, जिनसे हमें ये जानने को मिला that it doesn't matter from where you are. If you have a dream and a mindset to achieve it, nothing can stop you. Stay tuned for such interesting videos with such amazing personalities on Udaipur Colors.